الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الحافتين. وقال في موضع آخر: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کے مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان کے انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ رمضان کی جتنے ایام باقی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ورکشاپ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دل میں دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کو متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی برکت سے یا اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اعتکاف کے جو اہم اور ضروری مسائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائے، آپ کو سمجھا دیے جائیں، تاکہ یہ جو عمل ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کر سکیں، اور صحیح طریقے سے ہمیں اس کے جو انوارات اور برکات ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اعتکاف کے بارے میں بتائیں گے کہ اعتکاف ہے کیا چیز۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ اعتکاف کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ اور اصطلاحی مطلب یا شرعی مطلب یا دینی زبان میں کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی ایسی مسجد میں جہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت 5 وقت فرض نماز پابندی سے باجماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔ آسانی کے ساتھ یہ کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔
ظاہر ہے جو مسجد ہوگی وہاں پہ 5 وقت نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تو 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اعتکاف کہلاتا ہے. اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے. اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور یہ بہت ہی نرالی اور عاشقانہ عبادت ہے. اس میں بندہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بخشوانے کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کے در پہ ڈال دیتا ہے. کچھ دنوں کے لیے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کے پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا لیتا ہے. اور جو افراد چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور اچھے عادات کی توفیق انہیں نصیب ہو، تو اعتکاف جو ہے یہ ایک بہترین عبادت ہے اور یہ ایک بہترین موقع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تمام نیکیاں اسی طرح اس کے لیے لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو، جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا ہو. اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکی تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے رمضان کا اعتکاف نہیں فرما سکی تو اگلے مہینے یعنی شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کر کے اس کی تلافی فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ اہتمام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف یہ بہت ہی بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے. یہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے کوئی شخص تمام تر نیکیاں کر رہا ہو. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس معتکف اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں جو ہے وہ حائل کر دیں گے جو لمبائی اور چوڑائی میں
خافقین سے زیادہ وسیع ہوگی۔ اس سے خافقین سے، اب خافقین کی تشریح محدثین نے بیان فرمائی، اس کے دو معنی بیان کیے کہ خافقین سے مراد جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ معتکف اور دوزخ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ معتکف کو دوزخ سے بہت دور رکھا جاتا ہے، معتکف کو دوزخ سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ بہت ہی اہم اور بہترین عبادت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ اس میں مسجد جیسی عظیم اور مبارک جگہ میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے، مسجد میں وقت گزارنے مسجد کو آباد کرنے کے فضائل نصیب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی ہم نشینی جو ہے انسان کو میسر آ جاتی ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، جس کی وجہ سے نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام انسان کو نصیب ہوتا ہے، اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی فضیلت حاصل کرنے کا انسان کو موقع مل جاتا ہے، مسجد اور اس کے نورانی ماحول کی برکت سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کو ذکر کرنے، تلاوت کرنے، تسبیحات، درود شریف، نوافل اور دعاؤں جیسی بہت سی عبادات کی ادائیگی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن جگہوں پہ جہاں پہ دینی مجالس ہوتی ہے، تو دینی مجالس کی وجہ سے دین کی بنیادی تعلیمات سیکھنے کو ملتی ہے، مسجد کے ماحول کی برکت سے فضول کاموں سے انسان بچ جاتا ہے، آخرت اور دین کی فکر بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور انسان شیطان کی چال سے کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، معتکف کا کھانا پینا سونا یہ سب نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، معتکف کو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور سب سے اہم جو بات ہے کہ انسان کو شب قدر جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے، معتکف کو ہر حالت میں شب قدر نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ نیند کی حالت میں رات گزارے یا عبادت کرتا ہوا گزارے، ہر حالت میں اسے شب قدر جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم عبادت ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں، کچھ فوائد جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کے متعلق ضروری علم حاصل کر لے، تاکہ ہمارا اعتکاف جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم یہ مسائل نہیں سیکھتے، غفلت کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کئی مرتبہ ہمارا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور اگر احساس ہو بھی جائے تو بعد میں پچھتاوا رہتا ہے کہ ہم سنت اعتکاف سے محروم ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ بعد کی پچھتاوی سے بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کے مسائل ہم سیکھ لیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، جس کام کو سیکھ کر کیا جاتا ہے وہ کام انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کام کو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس کے قبولیت کے آثار جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔
تو इंशाअल्लाह अभी जब हम आपके सामने एहतिकाफ के मसाइल बयान करेंगे तो हमें मजीद कुछ फ़वाइद हासिल होंगे। एक तो इल्म हासिल करने का जो फरीज़ा है वो अदा हो जाएगा, इल्म हासिल करने पे अजर व सवाब हमें नसीब होगा। एहतिकाफ से मुतालिक बहुत सी गलत फहमियाँ और हमारी गलतियाँ दूर हो जाएंगी, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह एहतिकाफ का ये अमल अच्छे तरीके से हम अदा कर सकेंगे। एहतिकाफ को तोड़ने और मकरूह करने वाली चीज़ों से हमारे लिए बचना आसान हो जाएगा। इसी तरह हमें मालूम हो जाएगा कि एहतिकाफ के बारे में शरीयत ने हमें जो रुख्सतें दी हैं, सहूलतें दे रखी है, उनकी हदूद क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि एहतिकाफ के दुरुस्त होने पे हमें इत्मीनान नसीब हो जाएगा, और दूसरों के भी हम सही पे रहनुमाई कर सकेंगे, और फिर जब वो भी अमल करेंगे तो उनका जो सवाब भी हमें हासिल होगा। तो एहतिकाफ की ये इबादत जिस कदर अहम है, एहतियात वाली है, कि जरा सी गफलत भी, जरा सी गलती जो है वो एहतिकाफ को तोड़ देती है। तो कदम कदम पे एहतियात की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा एहतिकाफ जो है वो टूटने से महफूज रहे। एहतिकाफ को टूटने से बचाने के लिए दो बातों का बहुत ज्यादा एहतमाम करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि एहतिकाफ में बैठने से पहले एहतिकाफ के मसाइल हम सीख लें। दूसरी सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि एहतिकाफ के दौरान भी कोई काम करने से पहले किसी मुस्तनद आलिम से पूछ लें, और फिर उसके बाद उसी के मुवाफिक हम अमल कर लें, ताकि ये मालूम हो कि इससे एहतिकाफ टूटता है या नहीं टूटता। और ये हमारा तजर्बा भी है, मुशाहदा भी है, कि जो आदमी एहतिकाफ की हालत में हर काम से पहले पूछने की आदत हो तो उसका एहतिकाफ महफूज रह जाता है। जब इंसान पूछ पूछ के अमल करता है तो फिर उसके लिए आसानी होती है, उसका एहतिकाफ महफूज रह जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी आदत क्या होती है कि हम पहले कोई काम करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि आया एहतिकाफ टूटा या नहीं। तो इसलिए इस हवाले से बतौर खास हमने ख्याल रखना है। तो एहतिकाफ की तारीफ आपको बता दी कि अल्लाह का कुर्ब और सवाब हासिल करने के लिए मस्जिद में ठहरना ये एहतिकाफ कहलाता है। मस्जिद में ठहरना ये क्या कहलाता है? एहतिकाफ कहलाता है। एहतिकाफ की तीन किस्में हैं। एहतिकाफ की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। वाजिब, सुन्नत और नफल। एहतिकाफ की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। जो अहम अहम बातें हैं वो कोशिश कर ले अपने पास नोट करते जाएं। तो एहतिकाफ की कुल कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। वाजिब, सुन्नत और नफल। वाजिब एहतिकाफ किसे कहते हैं? जब इंसान एहतिकाफ की नजर और मन्नत मानता है तो उसको वाजिब एहतिकाफ कहते हैं। जब एहतिकाफ की नजर और मन्नत मानी जाए तो उसको वाजिब एहतिकाफ कहते हैं। जैसे कोई शख्स यूं कहे कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं इतने दिन का एहतिकाफ करूंगा, मेरा फलां काम हो गया तो मैं इतने दिन एहतिकाफ करूंगा, और वो काम हो जाए, तो अब उसके लिए ये एहतिकाफ करना ये क्या है? वाजिब है। तो वाजिब एहतिकाफ का चूंकि रिवाज बहुत कम है, इसलिए इस हवाले से हम जो है मजीद तफसीलात जिक्र नहीं करेंगे। किसी को अगर ये सूरत पेश आ जाए वो बाद में फिर अलग पूछ लें। दूसरी किस्म जो है नफली एहतिकाफ। नफली एहतिकाफ, इसका क्या मतलब कि अल्लाह ताला का कुर्ब और सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में ठहरना ये नफली एहतिकाफ कहलाता है। अल्लाह ताला का कुर्ब और सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में ठहरना ये क्या कहलाता है? नफली एहतिकाफ कहलाता है।
چاہے جتنی دیر بھی ہو، 1 منٹ کے لیے ہو، 1 لمحے کے لیے ہو۔ تو نفلی اعتکاف یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ یہ الگ مستقل عبادت ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں جانا ہو تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنی دیر وہ مسجد میں ٹھہرے رہیں گے ان کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت بھی مقرر نہیں ہے، بلکہ دن میں ہو رات میں ہو، جب بھی چاہے جتنی دیر بھی چاہے یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس اعتکاف میں سنت اعتکاف کی طرح پابندیاں جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوتی۔ تو عام دنوں میں بھی نفلی اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں اس کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی مسجد جانا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، جب تک میں اس مسجد میں ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو جب وہاں پہ عبادت کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اس کو ساتھ میں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جن افراد کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلایا ہوا ہے، حرمین شریفین میں ہے، تو وہ بھی وہاں جب بھی مسجد میں آپ طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے داخل ہوں تو آپ وہاں پہ اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کی۔ تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کو اس کا ثواب فری میں ملتا رہے گا۔ کیا آسان نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اس کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے۔ جب بھی مسجد جانا ہو، ساتھ میں بچے ہوں تو ان کو بھی بتانا چاہیے، ان کی بھی عادت بچپن ہی سے ڈلوانی چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے نفلی اعتکاف کے لیے کہ آپ عربی زبان میں ہی نیت کر لیں، بس آپ یہ کہہ لیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ عربی میں کہنا ہے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد۔ اگر ذہن میں کوئی سوال وغیرہ آ رہا ہو تو سوالات نوٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ آخر میں کوشش کریں گے ہر ایک کے سوال کا جواب دے دیں۔ تو جو افراد کسی وجہ سے بھی پورے عاشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے، 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتے، تو ان کو جتنے دن کا موقع مل رہا ہو تو وہ اتنے ہی دن نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو دن کو کام کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ رات ہی کو نفلی عبادت کر لیا کرے۔ اسی طرح چھٹی کے دنوں میں بھی اس نفلی اعتکاف کی فضیلت جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو خواتین سنت اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ گھر کی مسجد میں نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کریں۔ گھر کی مسجد سے مراد جو مصلی آپ نے بنایا ہوا ہے، کوئی کمرہ یا کوئی جگہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کی ہوئی ہے، اگر ابھی تک خاص نہیں کی تو ابھی سے کوئی جگہ خاص کر لیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک جگہ خاص کر لیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھتے رہیں
और नफली एहतिकाफ के लिए भी उसी जगह बैठ जाया करें। तो इसकी बड़ी फजीलत है। और ख़वातीन के लिए भी नफली एहतिकाफ के वही अहकाम है जो अभी आपके सामने बयान कर दिए। वैसे इंशाल्लाह ख़वातीन के एहतिकाफ के हवाले से अलग से तफसीली जो है वो आखिर में बात करेंगे। अलबत्ता अक्सर जो मसाइल है वो मुश्तरक है, तो इसको भी तवज्जो से सुनते रहें, इन मसाइल को भी आप तवज्जो से सुनते रहें। ये ना हो कि आपके जहन में ये आए कि ख़वातीन के लिए अलग से आखिर में बयान किया जाएगा और अभी आप तवज्जो ना करें, ऐसा भी नहीं है। अब भी आप तवज्जो कर लें, बाद में इंशाअल्लाह मजीद जो है वो भी आपके हवाले से जो अलग अहकाम है उनको भी जिक्र करेंगे। ठीक है। तो नफली एहतिकाफ से के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई वगैरह जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं कम अज कम मस्जिद में, लेकिन उसके बावजूद इस अहम इबादत से हम महरूम रहते हैं। अभी आपको बताया इसमें किसी भी किस्म की मशक्क़त और तकलीफ नहीं है, बल्कि सिर्फ मस्जिद में दाखिल होते वक्त नियत करनी होती है। इसी तरह ख़वातीन भी 5 वक्त नमाज पढ़ती है, मुसल्ला पे आती रहेंगी, नमाज पढ़ने के लिए आती रहेंगी, तो वो भी बस सिर्फ जैसे ही वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो उस वक्त नफली एहतिकाफ की नीयत कर लें। तो नफली इबादत और इस नफली एहतिकाफ का इजाफी अजर और तवाब हमें मिलता रहेगा। ये इस कदर अहम इबादत है, हम इससे गफलत ना करें। तो आप इरादा कीजिए, आज़म कीजिए कि इस अहम इबादत पर हम भरपूर अमल करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ गई सबको? तो नफली एहतिकाफ के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो तकरीबन आपके सामने मुकम्मल कर ली। अब सुन्नत एहतिकाफ की तरफ आते हैं। सुन्नत एहतिकाफ की क्या हकीकत है? तो रमज़ान के आखिरी आशरे के एहतिकाफ को सुन्नत एहतिकाफ कहा जाता है। रमज़ान के आखिरी आशरे में एहतिकाफ को क्या कहा जाता है? सुन्नत एहतिकाफ कहा जाता है। तो आपके सामने एहतिकाफ की 3 किस्में बयान की थी: वाजिब, नफली और सुन्नत। वाजिब के बारे में भी आपको बता दिया और नफली एहतिकाफ के बारे में भी आपको बता दिया। अब जो है सुन्नत एहतिकाफ के बारे में आपके सामने मसाइल जिक्र करेंगे, अहकाम बताएंगे। तो ये जो रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ किया जाता है ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। अलबत्ता फुक़हाए किराम ने इसको सुन्नत अलल किफ़ाया भी करार दिया है। सुन्नत अलल किफ़ाया, इस तरह हमने पढ़ा था ना फर्ज किफ़ाया, कि अगर बाज अफराद अदा कर ले तो सब की तरफ से अदा हो जाता है, लेकिन अगर बाज भी अदा ना कर ले तो सब गुनहगार होते हैं। तो सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब क्या है? वैसे तो हर एक को चाहिए कि वो इस फजीलत और सवाब के अमल को सरअंजाम दे, क्योंकि ये बहुत ही अहम और मुफीद इबादत है। लेकिन अगर किसी मस्जिद में कोई एक शख्स भी एहतिकाफ कर ले तो उस महल्ले की तरफ से, सब की तरफ से जो है वो सुन्नत अदा हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक शख्स भी एहतिकाफ के लिए ना बैठे तो सब पर सुन्नत छोड़ने का वबाल होगा, सब पर सुन्नत छोड़ने का वबाल होगा। इसलिए मसाजिद की इंतज़ामिया और अहल महल्ला इस बात का खुसूसी ख्याल रखे कि मस्जिद में कोई ना कोई एहतिकाफ करने वाला ज़रूर होना चाहिए। और जाहिर है कि इसकी फिक्र जो है एहतिकाफ शुरू होने से पहले जो है वो होनी चाहिए। अब भी 1-2 दिन है, बाज़ जगहों में 1 दिन, बाज़ में 2 दिन, तो इसका एहतमाम बतौर ख़ास करें। रमज़ान का जो
सुन्नत एतिकाफ होता है वो पूरे आखिरी आशरे का होता है, आखिरी आशरे का पूरा होता है। तो जो हजरात आशरे से कम के एतिकाफ के लिए बैठना चाहें तो उनका एतिकाफ सुन्नत नहीं बल्कि नफली एतिकाफ कहलाता है। उस पर नफली एतिकाफ ही के अहकाम जारी होते हैं, उस पर नफली एतिकाफ के अहकाम ही क्या होते हैं, जारी होते हैं। तो रमजान का सुन्नत एतिकाफ वो पूरे आखिरी अशरे का होता है। तो जो अफराद किसी वजह से भी पूरे अशरे का एहतिकाफ नहीं कर सकती तो उनको जितने दिन का मौका मिल रहा हो तो वो उतने दिन ही नफली एहतिकाफ के लिए बैठ जाए, क्योंकि इसकी भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह जो अफराद दिन को काम काम की वजह से एहतिकाफ में नहीं बैठ सकते तो वो रात को नफली एहतिकाफ कर लिया करे, और छुट्टी के दिन भी नफली एहतिकाफ जो है वो हासिल की जा सकती है उसकी फजीलत। अब ये कि कौन एहतिकाफ के लिए बैठ सकता है, क्या सवाल है कि कौन एहतिकाफ के लिए बैठ सकता है। हर वो मुसलमान जो आकिल हो वो एहतिकाफ के लिए बैठ सकता है, चाहे मर्द हो या औरत। हर वो मुसलमान जो आकिल हो यानी पागल और मजनून ना हो वो एहतिकाफ के लिए बैठ सकता है, चाहे मर्द हो या औरत। एहतिकाफ में बैठने के लिए बालिग होना शर्त नहीं है, एहतिकाफ में बैठने के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। इसलिए नाबालिग लड़का या लड़की अगर समझदार हो तो वो भी एहतिकाफ में बैठ सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, एहतिकाफ में बैठ सकते हैं। तो ये सुन्नत एहतिकाफ कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरी का एहतिकाफ 21 रमजान की रात से शुरू होता है, 21 रमजान की रात से शुरू होता है, और जब ईद का चांद नजर आ जाए तो ये एहतिकाफ खत्म हो जाता है। कब शुरू होता है, 21 रमजान की जो रात होगी और चांद रात को ये खत्म हो जाता है। तो मर्द के लिए इसी तरह खवातीन के लिए भी, दोनों के लिए, लेकिन ये कि जगह मुख्तलिफ होगी। मर्द के लिए एहतिकाफ में बैठने का तरीका ये है कि 20 रमजान को, कब, 20 रमजान को सूरज गुरूब होने से पहले पहले एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में आ जाए। सूरज गुरूब होने से पहले पहले एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में आ जाए, ताकि जब सूरज गुरूब होने लगे तो ये एहतिकाफ की हालत में हो, और जब ईद का चांद नजर आ जाए, ईद का चांद नजर आ जाए, उससे पहले नहीं, ईद का चांद नजर आ जाए तो ये एहतिकाफ खत्म हो जाता है, उसके बाद मस्जिद से निकल सकता है। तो जो आदमी 20 रमजान को सूरज गुरूब होने से पहले पहले एहतिकाफ के लिए नहीं बैठा बल्कि सूरज गुरूब होने के बाद बैठा, उसका एहतिकाफ सुन्नत नहीं कहलाएगा। अब अगर उसके बावजूद भी वो बैठना चाहे तो उसका एहतिकाफ नफली शुमार होगा, उस पर नफली एहतिकाफ ही के अहकाम जारी होंगे। इसी तरह खवातीन जो है वो 20 रमजान को सूरज गुरूब होने से पहले पहले एहतिकाफ वाली जगह पे आ जाए, एहतिकाफ वाली जगह पे आ जाए और चांद रात तक उस जगह में वो बैठी रहे। एहतिकाफ के लिए नियत के क्या अहकाम होंगे, क्या नियत करना जरूरी है या नहीं। तो याद रखें कि एहतिकाफ के लिए नियत का होना जरूरी है, एहतिकाफ के लिए नियत का होना जरूरी है, कि दिल में नियत करे कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ करता हूँ, रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ करता हूँ। दिल में ये नियत काफ़ी है। अलबत्ता अगर ज़ुबान से भी ये अल्फाज अदा कर लिए जाए तो दुरुस्त है, लेकिन ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। और सुन्नत एहतिकाफ की ये नीयत 20 रमजान का सूरज गुरूब होने से पहले पहले करनी जरूरी है। इसलिए
जिस शख्स ने मस्जिद आने के बाद भी नियत की नहीं की, मस्जिद आने के बाद भी नियत नहीं की, हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया, तो उसके बाद उसकी नियत का कोई एतबार नहीं है। यानी ऐसी सूरत में वो सुन्नत एतिकाफ की नियत नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो एतिकाफ के लिए बैठना भी चाहे तो उसका एतिकाफ नफली कहलाएगा। तो एतिकाफ की नियत चाहे आप मस्जिद में दाखिल होते वक्त करें या दाखिल हो जाने के बाद कर लें, दोनों सूरतों में दुरुस्त है, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। तो जो अफराद एतिकाफ में बैठना चाहते हैं तो इस अहम नुक्ते को नोट कर लें, याद कर लें कि गुरूब होने से पहले पहले आपने एतिकाफ की नियत करनी है। गुरूब होने से पहले पहले 20 रमजान को मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले पहले एतिकाफ की नियत करनी है। ये जरूरी बात है, जरूरी पॉइंट है, इसको बेशक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कि एहतिकाफ कौन सी जगह दुरुस्त है और मस्जिद की शरई हदूद क्या है और उनसे वाकफियत हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो मर्द हजरात का एहतिकाफ, खवातीन का नहीं, मर्द हजरात का एहतिकाफ चूंकि मस्जिद में होता है, मर्द हजरात का एहतिकाफ कहाँ होता है, मस्जिद में होता है। इसलिए मोतकिफ के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद की शरई हदूद से वाकफियत हासिल कर ले, वो मस्जिद की शरई हदूद से वाकिफियत हासिल कर ली, क्योंकि इस सिलसिले में जरा सी भी कोताही एहतिकाफ को फासिद कर सकती है। तो एहतिकाफ शुरू करने से पहले मस्जिद की इंतजामिया या मस्जिद का जो बानी है उससे मस्जिद की शरई हदूद जो है वो मालूम कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी जगह जो है वो आइन मस्जिद में दाखिल है और कौन कौन सी जगह जो है वो मस्जिद में दाखिल नहीं है। यहाँ पे मुराद शरई मस्जिद है, मैं इसकी वजाहत करूंगा। वैसे हर मस्जिद में इसका इंतजाम होता है, एहतिकाफ शुरू होने से पहले पहले निशानात वगैरह लगा देते हैं कि ये मस्जिद के शरई हदूद है और ये मस्जिद से बाहर एरिया है। इसी तरह अक्सर मसाजिद में बाज़ औक़ात मेहराब जो होता है वो भी मस्जिद में दाखिल नहीं होता, मस्जिद के हदूद में बाज़ मसाजिद में दाखिल किया जाता है। दा, दाखिल होने से मुराद अगर से वो हमें अंदर मस्जिद के अंदर नजर आ रहा होता है लेकिन नियत नहीं की होती, मस्जिद बनाने वाले ने उसको शरई मस्जिद की नियत नहीं की होती। तो अगर नियत की हो कि मस्जिद में दाखिल है तो फिर वो मस्जिद ही के अंदर दाखिल है। मस्जिद के मेहराब के पास या आसपास करीब में इमाम का गुरफा होता है, मुअज्जिन का गुरफा होता है, कमरा होता है, वो भी मस्जिद में दाखिल नहीं होता, वो अक्सर मस्जिद से क्या होता है, खारिज होता है। या कोई स्टोर वगैरह हो मस्जिद के पास, तो वहां पे इंसान को नहीं जाना चाहिए, वहां पे इंसान को नहीं जाना चाहिए। तो मस्जिद की शरई हुदूद जो है ये मालूम करना जो है ये बहुत जरूरी है। बहुत से मसाजिद में मस्जिद की शरई हुदूद का इम्तियाज नहीं होता, जिसकी वजह से एहतिकाफ करने वालों का एहतिकाफ टूट जाता है, टूटने का खदशा होता है। तो आप में से जो मसाजिद की इंतजामिया है तो उनको भी चाहिए कि वो एहतिकाफ से पहले मस्जिद की शरई हुदूद की तयीन करें, निशानदही करें, ताकि इस मामले में मोतकीफीन के लिए सहूलत रहे। वैसे नॉर्मली हम मस्जिद जो है पूरे अहाते को कहते हैं जो मस्जिद के लिए वक़्फ होता है। मस्जिद हम किसको कहते हैं, वो पूरा अहाता जो मस्जिद के लिए वक़्फ होता है। लेकिन एहतिकाफ का ताल्लुक सिर्फ आइन मस्जिद के साथ है, शरई मस्जिद के साथ है। आइन मस्जिद या शरई मस्जिद, आइन मस्जिद या शरई मस्जिद से मुराद वो तमाम जगह है जिसको मस्जिद के बानी ने खास मस्जिद करार दी हो, जो नमाज के लिए मखसूस हो, जिसमें चप्पल पहन के न चला जाता हो, जहां पर जुम्बी शख्स का दाखिला जायज ना हो, एहतिकाफ सिर्फ उसी जगह जायज है।
मस्जिद की इन हदूद के अलावा जो जगह मस्जिद के अहाते में तो हो लेकिन आयन मस्जिद में शामिल ना हो तो वहां जाने से एतिकाफ टूट जाएगा। जैसे वजू खाना है, गुसल खाना है, मस्जिद का कोई स्टोर रूम है, इमाम और मुअज्जिन का कमरा है, जनाजगाह है, ये जगह जो है अमूमन मस्जिद से यानी शरई मस्जिद से, आयन मस्जिद से खारिज होती है। अलबत्ता इनमें से अगर किसी जगह से मुतालिक मस्जिद का बानी जो है उसने सराहत की हो ये जगह आयन मस्जिद में शामिल है तो इस सूरत में वहां जाने से एतिकाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉर्मली मस्जिद का मेहराब, अंदरूनी हाल, बरामदा, सहन और छत, इसी तरह हर वो जगह जिसको मस्जिद के बानी ने शरई मस्जिद करार दी हो वो भी मस्जिद ही का हिस्सा शुमार होगी। मोतकिफ के लिए वहां जाना जायज होता है। अलबत्ता अगर इनमें से किसी जगह को मस्जिद के बानी ने शरई मस्जिद से खारिज रखा हो तो ऐसी सूरत में वहां जाने से एतिकाफ टूट जाएगा। मस्जिद की छत चूंकि मस्जिद ही का हुक्म रखती है तो एतिकाफ की हालत में वहां जाना जायज है। एतिकाफ की हालत में वहां पे जाना क्या है? जायज है। अलबत्ता अगर छत पे जाने के लिए रास्ता मस्जिद के अंदर से ही बनाया गया हो तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर शरई मस्जिद से बाहर बनाया गया हो तो उसके जरिए छत पे फिर जाना जायज नहीं होगा। और यही हुक्म उस मस्जिद का भी है जो कई मंजिला हो कि अगर ऊपर जाने का रास्ता मस्जिद की शरई हदूद के अंदर ही हो तो ऊपर की मंजिलों में जाना जायज है, और अगर रास्ता मस्जिद से बाहर हो यानी शरई मस्जिद से बाहर हो तो ऐसी सूरत में वहां जाने से एतिकाफ टूट जाएगा। तो मोतकिफ के लिए पूरी मस्जिद एहतिकाफ की जगह है। तो शरई मस्जिद में जिस जगह वो जाना चाहे जा सकता है, जिस जगह भी एहतिकाफ के लिए बैठना चाहे बैठ सकता है। इसी तरह मस्जिद में जिस जगह वो इबादत करना चाहे इबादत कर सकता है। उसके लिए अपनी मखसूस जगह ही इबादत करना जरूरी नहीं है। ठीक है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मोतकिफ के लिए चादरें लगाने का क्या हुक्म है। तो मोतकिफ एहतिकाफ के लिए जिस जगह बैठना चाहे वहां अपने इर्द गिर्द चादरें भी लगा सकता है जिसके फवाइद भी है। लेकिन अगर कोई चादर लगाए बगैर ही एहतिकाफ के लिए बैठ जाए तब भी उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता चादर लगाते वक्त जरूरत से ज्यादा जगह न घेरे ताकि दूसरों को तकलीफ का सामना न करना पड़े। और नमाजों के औकात में चादरें किसी एक तरफ कर लिया करे ताकि सफबंदी में परेशानी ना हो। और मोतकिफ ने अपने लिए जो जगह मखसूस की हो अगर वो उससे हटकर शरई मस्जिद ही के अंदर किसी और जगह आराम करना चाहे तो उसकी भी कोई उसमें भी कोई हरज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बात समझ आ गई? अब ये एतिकाफ जो है किन चीजों से टूटता है और किन चीजों से नहीं टूटता। तो सबसे पहली बुनियादी चीज जो है कि सुन्नत एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। रोजे के बगैर ये एतिकाफ दुरुस्त नहीं होता। ये सुन्नत एतिकाफ रोजे के बगैर दुरुस्त नहीं होता। यही वजह है कि अगर एतिकाफ के दौरान मोतकिफ ने किसी भी वजह से रोजा नहीं रखा, उसने किसी भी वजह से रोजा नहीं रखा या उसका रोजा किसी भी वजह से टूट गया तो उसका एतिकाफ भी टूट जाएगा। उसका सुन्नत एतिकाफ भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इससे ये बात भी मालूम हो गई कि अगर कोई मोतकिफ इस कदर बीमार हुआ कि उसको रोजा तोड़ने की नौबत पेश आई तो रोजा तोड़ने से उसका एहतिकाफ भी टूट जाएगा। रोजा तोड़ने से उसका एहतिकाफ भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मुअतकिफ जो है शरई इजाजत के बगैर मस्जिद से ना निकले। मस्जिद से मुराद शरई मस्जिद है जहां पे एहतिकाफ किया हुआ है। मस्जिद का पूरा अहाता मुराद नहीं है, बल्कि जो शरई मस्जिद जहां पे उसने एहतिकाफ किया हुआ है बगैर
शरई इजाजत की मस्जिद से ना निकले। उसके लिए जरूरी है कि वो एहतिकाफ के अय्याम में मस्जिद की शरई हदूद ही में रहे, शरई इजाजत के बगैर मस्जिद से ना निकले। मुतकिफ अगर किसी शरई इजाजत के बगैर मस्जिद से निकल जाएगा, चाहे वो भूल के निकल जाए या वो जानबूझ के निकल जाए, तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। उसका एहतिकाफ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अलबत्ता अगर एहतिकाफ भूल कर या गलती से टूट जाए तो उसका गुनाह नहीं होता। भूल कर या गलती से टूट जाए तो उसका गुनाह नहीं होता। अब शरई इजाजत से क्या मुराद है? मस्जिद से कब जो है इंसान निकल सकता है? तो मुअतकिफ क़ज़ाए हाजत और पेशाब के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। क़ज़ाए हाजत और पेशाब के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। लेकिन अगर फरागत के बाद थोड़ी देर भी वहां ठहर गया तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। अलबत्ता अगर वजू करना चाहे तो वजू के लिए ठहर सकता है। वजू के लिए वो क्या कर सकता है? ठहर सकता है। लेकिन वजू से फारिग होने के बाद फौरन मस्जिद में लौट आना जरूरी है। मोतकिफ अगर क़ज़ाए हाजत के लिए निकले, वहां जाके मालूम हुआ कि बैतुल खला मसरूफ है, कोई और है वहां पे, तो वहां इंतजार भी कर सकता है। बैतुल खला के आसपास वहां भी इंसान इंतजार भी कर सकता है। इसी तरह मोतकिफ के लिए अगर किसी माकूल उज़्र की वजह से मस्जिद के बैतुल खला का इस्तेमाल सख्त दुश्वार हो तो वो क़ज़ाए हाजत के लिए घर भी जा सकता है। वो क़ज़ाए हाजत के लिए घर भी जा सकता है। तो ये है शरीयत की सहूलत। ये अब शरीयत ने ये सहूलत दी है, हर एक के लिए नहीं है, ये बात खास अफराद के लिए है कि जो अफराद मस्जिद के बैतुल खला को इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसका इस्तेमाल करना उनके लिए सख्त दुश्वार हो, तो फिर वो घर भी क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकते हैं। लेकिन घर क़ज़ाए हाजत करके फिर वापस जल्दी आना जरूरी होता है। इसी तरह मोतकिफ को पेशाब के बाद कतरे निकलने का मरज हो, इसकी वजह से उसको इस्तिंजा की जरूरत पेश आ रही हो, तो वो इस्तिंजा के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। मस्जिद से बाहर निकल सकता है। यहाँ पे ये मसला भी समझना चाहिए कि जरूरत हो तो मोतकिफ जो है मस्जिद में हवा भी खारिज कर सकता है। मस्जिद में हवा भी खारिज कर सकता है, उससे एहतिकाफ पे असर नहीं पड़ता। अलबत्ता वजू जो है वो टूट जाता है, फिर वजू के लिए वो बाहर जा सकता है जब वजू टूट जाए। इसी तरह मोतकिफ को वजू की जरूरत हो, मोतकिफ को वजू की जरूरत हो और मस्जिद की शरई हदूद में वजू करने का इंतजाम भी हो। शरई मस्जिद में बाज़ औक़ात ये 10 दिनों के लिए आरिज़ी जो है वजू करने की जगह बना ली जाती है। ठीक है, तो मस्जिद में वजू करने का इंतजाम भी हो, तो ऐसी सूरत में वजू के लिए मस्जिद से बाहर निकलना यानी शरई मस्जिद से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर वजू का इंतजाम ना हो तो वजू के लिए मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। शरई मस्जिद के अंदर वजू करने के लिए जगह ना हो तो वजू के लिए मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। अगर वजू खाने में रश हो तो मोतकिफ वहाँ इंतजार भी कर सकता है, लेकिन वजू से फारिग होते ही फौरन मस्जिद लौट आना जरूरी है। मोतकिफ जो है हर नमाज के लिए, चाहे वो फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, कज़ा नमाज अदा करनी है, तिलावत करनी है, सजदे तिलावत अदा करना है, इन सब के लिए जिस वक्त भी चाहे वजू करने के लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है, अगर मस्जिद में वजू का इंतज़ाम ना हो। अलबत्ता अगर मोतकिफ पहले से ही बावजू है, मोतकिफ क्या है? पहले से ही बावजू है, तो बावजू होते हुए मस्जिद के अंदर अगर दोबारा वजू करना चाहे तो कर सकता है। बावजू होते हुए शरई मस्जिद के अंदर
अगर वुजू करना चाहे तो वुजू कर सकता है। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर यानी शरई मस्जिद में वुजू का इंतजाम नहीं है और वो पहले से बावुजू है, तो वुजू पर वुजू करना और उस मकसद के लिए बाहर निकलना ये उसके लिए जायज नहीं है। यानी पहले से मोतकिफ बावुजू है, तो अब दोबारा नमाज के लिए वुजू करने के लिए बाहर निकलना चाहे तो उसके लिए इजाजत नहीं है। सिर्फ उस सूरत में बाहर निकल सकता है जब उसका वुजू ना हो, जब उसका वुजू ना हो। जब मोतकिफ वुजू के लिए जाए तो वुजू के दौरान मिसवाक कर सकता है, टूथपेस्ट जो है वो भी कर सकता है। अलबत्ता रोजे की हालत में इससे इज्तिनाब किया जाए। साबुन भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इन इजाफी कामों में ज्यादा वक्त जो है वो खर्च ना करें। ये तो वुजू के मसाइल जो थे वो आपको बता दिए। अब मोतकिफ के लिए गुस्ल के क्या अहकाम है। मोतकिफ को अगर इख्तिलाम हो जाए तो मुनासिब ये है कि फौरन मस्जिद से निकल जाए और गुस्ल करके फौरन मस्जिद में लौट आए। मस्जिद से निकलने के लिए कोई कोई खास तरीका नहीं है, बल्कि जैसे भी हो मस्जिद से निकलना दुरुस्त है। लेकिन अगर फौरन मस्जिद से निकलने या गुस्ल करने का मौका ना हो, फौरन मस्जिद से नहीं निकल सकता या गुस्ल करने का कोई मौका नहीं है, तो तयम्मुम करके मस्जिद ही में रहे। तयम्मुम करके मस्जिद ही में रहे, फिर जब मौका मिले तो जाकर गुस्ल करके मस्जिद में लौट आ जाए। तयम्मुम जिस तरह वुजू किया जाता है, तयम्मुम तयम्मुम जो है ना, गुस्ल और वुजू के लिए तयम्मुम एक जैसा ही है। उसमें दो जबड़े लगानी होती है। कोई भी मट्टी की चीज जो है, मट्टी से बनी हुई कोई भी चीज हो, ईंट हो, उसको उसके ऊपर हाथ लगाने होते हैं, चेहरे पे फेरने हैं और फिर दोनों हाथों पे फेरने हैं, तो ये तयम्मुम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे जिस्म पे आप मट्टी जो है वो डालना शुरू कर दे। तो वुजू और गुस्ल के लिए तयम्मुम का एक ही तरीका है। तो एहतिकाफ की हालत में सिर्फ गुस्ल जनाबत के लिए मस्जिद से निकलना जायज है। गुस्ल जनाबत के लिए यानी किसी के ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ हो तो उसके लिए मस्जिद से निकलना जायज है। इसके अलावा जो गुस्ल सफाई के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए या जुमे का मसनून गुस्ल हो तो उसके लिए मस्जिद से अक्सर उलमा के नज़दीक निकलना जायज नहीं है। उससे भी एहतिकाफ छूट जाता है। ये गर्मियों में बड़ा मसला पेश आता है ये ठंडक हासिल करने के लिए। तो इस हवाले से मस्जिद, शरई मस्जिद के अंदर अगर गुसल खाने का नज़म कर लिया जाए, आरजी तौर पर गुसल खाना रखा हो, जैसे कि बास मसाजिद वाला इंतजाम करते हैं, उसमें तो हर वक्त गुसल कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन मस्जिद से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि सिर्फ वो गुस्ल जनाबत हो। गुस्ल जनाबत के लिए इंसान जो है मस्जिद से बाहर जा सकता है, वरना बाहर नहीं जा सकता। तो अगर कोई शख्स सफाई के लिए या ठंडक के लिए या जुमे के मसनून गुस्ल के लिए वो गुस्ल करना चाहे तो उसके लिए मस्जिद ही में ऐसा इंतजाम कर ले कि पानी जो है वो मस्जिद के फर्श पे ना गिरे। ठीक है। इसी तरह मोतकिफ को अगर एहतलाम हो जाए और वो उसी कपड़े के निजासत वाले मकाम को यानी जहाँ पे निजासत लगी हुई है उसको अच्छी तरह धो के वो लिबास दोबारा पहन ले तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, पहन सकता है। इसी तरह एहतिकाफ की हालत में कुल्ली करने, मिसवाक करने या टूथपेस्ट करने, सर धोने के लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज नहीं है। अगर इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर इंसान चला जाएगा, चाहे भूल कर हो, गलती से हो या जानबूझ कर हो, उससे एहतिकाफ टूट जाएगा। इसलिए इन कामों की अगर जरूरत पड़ रही हो तो मस्जिद ही में इनके लिए ऐसा मुनासिब इंतजाम कर लिया जाए। इनके लिए मस्जिद से स्पेशल बाहर जाना ये जायज नहीं है। ऐसा इंतजाम कर ले कि पानी भी मस्जिद में ना गिरे। इसी तरह हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए शरई मस्जिद ही के अंदर इंतजाम कर लिया जाए। इस मकसद के लिए भी अलग से बाहर जाना जायज नहीं है। मकसद के लिए भी अलग से मस्जिद से बाहर जाना जायज नहीं है। एहतिकाफ की हालत में कंघी करना, नाखून और बाल काटना ये भी जायज है।
لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ناخن اور بال مسجد میں نہ گرنے پائے، ناخن اور بال مسجد میں نہ گرنے پائے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی بال اور ناخن کاٹ لے، تاکہ اعتکاف کے قیمتی لمحات جو ہے ان اضافی کاموں میں صرف نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ معتکف جب وضو یا قضاء حاجت کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو آتے جاتے چلتے چلتے تو اگر کسی کے ساتھ بات چیت اور دعا سلام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یعنی چلتے چلتے آپ کے سامنے کوئی آ گیا، اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا، چلتے چلتے آپ سلام کر سکتے ہیں، اگر کوئی ضروری بات ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بات کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے ٹھہرنے سے اجتناب کیا جائے، ٹھہرنا جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ معتکف کے بدن یا جسم پہ اگر کوئی نجاست لگ جائے اور مسجد میں اس کو دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو یا مسجد میں اس کو دھونا مشکل ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا درست ہے، اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا درست ہے۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہے، البتہ اس کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی متاثر نہ ہو، مسجد کی صفائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ معتکف کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ خود بھی گھر سے کھانا لے کے آ سکتا ہے۔ گھر میں کھانا جائز نہیں ہے، گھر میں صرف کیا کر سکتا ہے، کھانا لے کے آ سکتا ہے، تو گھر والوں کو پہلے سے ہی فون کر لے کے جیسے ہی کھانا تیار ہو اسی وقت جائے اور جلدی سے لے کے آ جائے، یہ اس صورت میں جب گھر سے کھانا لانے کے لیے کوئی بندہ نہ ہو اور مسجد میں کھانے کا نظم نہ ہو۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک منٹ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں انسان کرے جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں بھی جا سکتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور جمعے کے لیے جاتے ہوئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اس کو اندازہ ہو کہ جامع مسجد میں پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کر کے اس کے بعد خطبہ شروع ہو سکے، جمعے کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد چاہے تو سنتیں بھی وہاں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جمعے کے لیے کسی بڑی مسجد میں گیا اور پھر واپس نہ آیا بلکہ وہی اعتکاف کے لیے ٹھہر گیا، اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا اس کا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اگر معتکف ایسے گاؤں اور دیہات کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو جہاں جمعہ واجب نہ ہو تو اس کے لیے پھر جمعے کے لیے جانا، مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان افراد پہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مؤذن کسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا اور اس مسجد کی اذان کی جگہ مسجد کی شرعی حدود سے باہر ہو تو اذان دینے کے لیے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا بھی جائز ہے، لیکن اذان کے فوراً بعد مسجد میں لوٹ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی باقاعدہ مؤذن نہیں ہے لیکن کسی وقت اذان دینے کے لیے اسے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا پڑے تو اذان کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے، اذان کی غرض سے مسجد سے باہر نکلنا کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن گمشدہ بچے یا کسی کی فوتگی کا اعلان کرنے کے لیے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سنت اعتکاف میں کسی کام کے لیے نکلنے کی استثناء کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کسی کام کے لیے نکلنے کی استثناء کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف شروع کرتے وقت استثناء کی نیت کر لی، مثلا
तरावी पढ़ाने के लिए दूसरी मस्जिद जाऊंगा या इम्तिहान देने के लिए जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में वो एहतिकाफ सुन्नत नहीं रहेगा, बल्कि वो नफली एहतिकाफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नफली एहतिकाफ हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब ये कि किन सूरतों में एहतिकाफ जो है वो तोड़ना जायज है, किन सूरतों में एहतिकाफ तोड़ना क्या है, जायज है। तो जिन सूरतों में एहतिकाफ तोड़ना जायज है उनमें से चंद आपके सामने जिक्र करूंगा। कि कोई आदमी ऐसा बीमार हो जाए कि उसके लिए एहतिकाफ बरकरार रखना मुश्किल हो जाए, ऐसी बीमारी हो कि एहतिकाफ बरकरार रखना क्या है, वो मुश्किल हो, या उसको इलाज के लिए मस्जिद से निकलना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में उसके लिए एहतिकाफ तोड़ना जायज है, बाद में उसकी कज़ा कर ली। इसी तरह किसी आदमी की वालिदैन बीवी बच्चे इस कदर बीमार पड़ जाए, उनके लिए मस्जिद से निकलने की जरूरत पेश आ जाए, तो उसके लिए भी निकलना जायज है, एहतिकाफ को तोड़ना जायज है। जनाजा तैयार है किसी का और कोई दूसरा नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ना हो, तो उसके लिए भी एहतिकाफ तोड़ना जायज है। तो इन तमाम सूरतों में एहतिकाफ तोड़ना जायज है, लेकिन इसकी कज़ा लाजिम है। अलबत्ता इसकी वजह से वो गुनहगार नहीं होगा, इसकी वजह से वो गुनहगार नहीं होगा। अब एहतिकाफ जब टूट जाए तो कैसे कज़ा करना है और उसका तरीका क्या होगा? तो सुन्नत एहतिकाफ जब टूट जाए तो उसकी कज़ा जो है वो लाजिम होती है, और कज़ा एहतिकाफ के लिए रोज़ा भी ज़रूरी है। इसलिए अगर रमज़ान ही में कज़ा करनी है तो उस सूरत में रोज़ा तो पहले ही होता है, ठीक है, तो अलग से रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रमज़ान के अलावा दीगर दिनों में एहतिकाफ की कज़ा करनी हो तो उसके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है, उसके लिए रोज़ा रखना भी क्या है, ज़रूरी है। रमज़ान का सुन्नत एहतिकाफ जब भी टूट जाए तो सिर्फ एक दिन की कज़ा लाजिम होती है, 10 दिनों की कज़ा नहीं होती, सिर्फ एक दिन की कज़ा क्या होती है, लाजिम होती है। अब इसका मसला क्या है? अगर एहतिकाफ सुबह सादिक से लेके सूरज गुरूब होने के दरमियान किसी वक्त टूटा हो, यानी फजर के वो बाद से लेके मगरिब होने तक इस दरमियान में किसी वक्त टूटा है, तो इस सूरत में सिर्फ दिन की कज़ा लाजिम है, सिर्फ क्या है, दिन की कज़ा लाजिम है। और इसका तरीका ये होता है कि सुबह सादिक का वक्त दाखिल होने से पहले, सुबह सादिक का वक्त दाखिल होने से पहले यानी सहरी के वक्त जो है कज़ा एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में आ जाए, और फिर जब सूरज गुरूब हो जाए तो ये कज़ा एहतिकाफ पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जब दिन में एहतिकाफ टूट जाए, और अगर सूरज गुरूब होने से लेके सुबह सादिक तक किसी वक्त टूटा है, यानी रात के वक्त में टूटा है, तो उसकी कज़ा का तरीका ये है कि सूरज गुरूब होने से पहले कज़ा एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में आ जाए, और अगले दिन जब सूरज गुरूब हो जाए तो उस एहतिकाफ का वक्त ख़त्म हो जाएगा, उस एहतिकाफ का वक्त क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और वो अफराद जिनका एहतिकाफ टूट जाए और रमज़ान के अय्याम अभी बाकी हो तो वो घर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो घर ना जाना चाहें बल्कि एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद ही में रहना चाहे, तो उनका ये एहतिकाफ नफली एहतिकाफ कहलाएगा। उनकी ज़िम्मे सुन्नत एहतिकाफ की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। अलबत्ता उन्हें चाहिए कि वो इसी रमज़ान में उस एहतिकाफ की कज़ा कर ले, लेकिन अगर वो फिलहाल कज़ा ना करना चाहे तो बाद में भी कज़ा कर ले। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए फिर अलग से रोज़ा रखना पड़ेगा, उसके लिए रोज़ा रखना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो अमूमी मसाइल थे एहतिकाफ के हवाले से जो आपके सामने बयान कर दिए। अब खवातीन के एहतिकाफ के हवाले से जो मसाइल है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे।
تو شیروں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ مسنون ہے، سنت ہے، تو جس طرح یہ مردوں کے لیے سنت ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ تو خواتین جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لے کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں ہے۔ اگر ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کی دوران آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں، ایسی صورت میں وہ اعتکاف کے لیے مسنون اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں۔ اگر کچھ ایام نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اعتکاف کو ختم کر لے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ قضا کرنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ جو عورت 20 رمضان کو دن کے وقت ماہواری سے پاک ہو گئی تو وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، یعنی 20 رمضان کو وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، اپنے شوہروں کے اجازت کے بعد ہی وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا، تو نابالغ بچی جو ہے اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ تو جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی جائز ہے، اسی طرح عورت کا اعتکاف گھر کے مسجد ہی میں درست ہے، گھر کی مسجد میں ہی درست ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہے جو اس کی نماز کے لیے مخصوص ہو۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی کہ وہاں پہ عموماً نماز ادا کرتی ہو، یا کبھی کہاں پڑھ لی کبھی کہاں، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں وہ پہلے اپنی نماز کے لیے جگہ خاص کر لے، اپنی نماز کے لیے وہ کیا کر لے، جگہ خاص کر لے کہ نماز اسی جگہ وہ ادا کرے گی اور پھر وہ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ مقرر کر لینا مستحب ہے جہاں خواتین اور گھر کے دیگر افراد نماز اور دیگر عبادات جو ہے وہ ادا کر لیا کرے۔ تو جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو وہ پہلے اپنی نماز کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لیں جہاں وہ بسہولت اعتکاف کر سکے، اور پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر رکھی ہے لیکن اس جگہ اعتکاف کرنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں پہلے وہ اپنی نماز کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کر لے جہاں وہ سہولت کے ساتھ اعتکاف کر سکے، اور پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، چاہے اعتکاف کے بعد کسی وجہ سے اس جگہ پابندی کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے بعد میں۔ تو گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو تو وہ پوری اعتکاف کی جگہ کہلائے گی۔ البتہ عورت اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر سکتی ہے جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے ارد گرد پردے بھی لگا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر پردوں کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا بطور خاص دھیان رہے کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے گھیری ہو وہاں کوئی نشانی لگا دے تاکہ غلطی سے کہیں اس سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب عورت جو ہے اعتکاف کے لیے کب بیٹھے، عورت جو ہے اعتکاف کے لیے کب بیٹھے؟ تو 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عورت اعتکاف کی نیت سے اپنی اعتکاف کی جگہ آ جائے تاکہ جب وہ سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو،
اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ سنت اعتکاف جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ عورت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنی اعتکاف کی جگہ ہی میں رہے۔ اگر اس جگہ سے کسی شرعی عذر کے بغیر نکل گئی، چاہے بھول کر ہو جان بوجھ کر ہو، تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے صرف انہی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے جن کے لیے مردوں کے لیے نکلنا جائز ہے۔ جن کے نکلنے کے لیے مردوں کو نکلنا جائز ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی، ان ضروریات کے لیے عورتیں جو ہے وہ بھی نکل سکتی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ احتکاف کی حالت میں خاتون جو ہے قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گئی تو احتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہیں تو وضو کے لیے ٹھہر سکتی ہے، لیکن وضو سے فارغ ہونے کے فوراً بعد مسجد میں، یعنی اپنی شرعی مسجد جو مصلی اس نے بنایا ہے، وہاں پہ آنا ضروری ہے۔ احتکاف میں بیٹھی عورت کو وضو کی ضرورت ہو اور احتکاف کی جگہ وضو کرنے کا انتظام بھی ہو، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے اپنی جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر احتکاف والی جگہ وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے باہر نکلنا بھی جائز ہے۔ اور احتکاف میں جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر نماز کے لیے، چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، قضا نماز ادا کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے، تو ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے باہر جانا جائز ہوگا، بشرطے کہ اعتکاف کی جگہ وضو کا انتظام نہ ہو۔ لیکن اگر پہلے سے باوضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی جگہ وضو کا انتظام ہے تو وہاں پہ دوبارہ بھی وضو کر سکتی ہے۔ اسی طرح وضو کے دوران مسواک، ٹوتھ پیسٹ وہ استعمال کر سکتی ہے، صابن بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن زیادہ وقت جو ہے ان کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں غسل کے احکام بھی وہی ہے جو مردوں کے ہیں، یعنی اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے اعتکاف والی جگہ سے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل صفائی یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا جمعے کا مصنون غسل ہو، اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی عورت صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لیا جائے۔ اگر اعتکاف کی جگہ ایسا کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو اور معتکف عورت کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی ضروری حاجت ہو رہی ہو، تو ایسی شدید مجبوری میں بعض اہل علم نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کر لے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کوشش یہ ہو کہ اس اجازت پہ شدید مجبوری میں ہی عمل کیا جائے۔ آج کل چونکہ گرمی نہیں ہے تو ان کاموں سے اجتناب کر لیا جائے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک کرنے، ٹوتھ پیسٹ کرنے، سر دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے خاتون باہر جاتی ہے، چاہے وہ بھول کے ہے، غلطی سے ہے، جان بوجھ کر ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کاموں کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اعتکاف والی جگہ ہی بھی ان کے لیے مناسب انتظام کر لیا جائے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے، برتن دھونے کے لیے بھی احتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لیا جائے یا گھر کی کسی فرد کی ذمہ داری لگا دی جائے، اس کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ معتکف عورت جب وضو یا قضاء حاجت کی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے نکلے تو آتے جاتے چلتے چلتے کسی سے بات چیت کر لے، دعا سلام کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ان کاموں کے لیے اگر تھوڑی دیر بھی وہ ٹھہر گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وضو کے دوران بھی وضو کرتے کرتے ضرورت کی بات چیت کر لی تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ ٹھہرنے سے اجتناب ضروری ہے۔
मोतकिफ औरत के बदन पर, जिस्म पर अगर कोई निजासत लग जाए और एहतिकाफ वाली जगह में उसको धोने का कोई इंतजाम ना हो, तो उस नापाकी को दूर करने के लिए अपनी जगह से निकलना क्या है? दुरुस्त है। अपनी जगह से निकलना क्या है? दुरुस्त है। अब मोतकिफ औरत के लिए अगर उसको खाने पीने की हाजत हो, खाने पीने की हाजत हो और कोई लाने वाला ना हो, खाना लाने वाला ना हो, तो ऐसी सूरत में वो खुद जाकर भी खाना ला सकती है। वो खुद लाकर किचन से खाना ला सकती है। अलबत्ता औरत के लिए किचन जाके खाना पकाना दुरुस्त नहीं है। किचन जाके खाना पकाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि मजबूरी की सूरत में एहतिकाफ ही की जगह खाने पकाने का इंतजाम कर लिया जाए। अगर मजबूरी है, कोई खाना पकाने वाला नहीं है, तो मजबूरी की हालत में एहतिकाफ की जगह में ही खाना पकाने का इंतजाम कर लिया जाए। यहां तक बात समझ आ गई? अब खातून के लिए किन सूरतों में एहतिकाफ तोड़ना जायज है? वही सूरतें जो मर्द के लिए मैंने जिक्र कर दी, खवातीन के लिए भी है। कि कोई औरत ऐसी बीमार हो जाए कि उसके लिए एहतिकाफ को बरकरार रखना मुश्किल हो, या उसको इलाज के लिए एहतिकाफ की जगह से निकलना पड़ जाए, तो उसके लिए जायज़ है, एहतिकाफ तोड़ सकती है। किसी औरत के वालिदैन या दीगर घर वाले इस कदर बीमार पड़ जाए कि उनके लिए एहतिकाफ की जगह से निकलने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो उसकी भी गुंजाइश है। इन जैसी सूरतों में एहतिकाफ को तोड़ना जायज़ है, लेकिन इसकी कज़ा बाद में लाजिम है, और इसकी वजह से वो गुनहगार भी नहीं होगी, वो खातून गुनहगार भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि सुन्नत एहतिकाफ जब टूट जाए तो उसकी कज़ा जो है वो लाजिम होती है। उसकी कज़ा क्या होती है? लाजिम होती है। और कज़ा एहतिकाफ के लिए रोज़ा भी ज़रूरी है। तो अगर रमज़ान के महीने में कज़ा करनी है तो रोज़ा तो पहले से ही होता है, और अब अगर रमज़ान के अलावा बाकी अयाम भी कज़ा करनी है तो अलग से रोज़ा रखना भी ज़रूरी होगा। रमज़ान का सुन्नत एहतिकाफ जब टूट जाए तो सिर्फ एक दिन की कज़ा जो है वो लाजिम है। और तरीका वो मैंने आपको बता दिया कि अगर दिन के वक्त में रोज़ा ये एहतिकाफ टूट जाए, यानी सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक किसी वक्त एहतिकाफ टूटता है, तो उस सूरत में सिर्फ दिन की कज़ा लाजिम होती है। और उसका तरीका आपको बता दिया कि सुबह सादिक से पहले यानी सहरी के वक्त वो अपनी ये एहतिकाफ वाली जगह में आ जाए, और मगरिब के बाद वो वहां से उठ जाए तो कज़ा हो जाएगा। और अगर रात के वक्त में यानी मगरिब से लेके सुबह सादिक के दरमियान किसी वक्त में एहतिकाफ टूट जाए, तो ऐसी सूरत में गुरूब से पहले पहले वो एहतिकाफ वाली जगह में आ जाए, और अगले दिन गुरूब होने के बाद वहां से उठ जाए, तो ये कज़ा हो जाएगी। औरत के एहतिकाफ में एक सहूलत है। मर्द चूंकि मस्जिद में एहतिकाफ करते हैं, इसलिए उनके लिए कई चीजें इसलिए ममनू होती है कि वो मस्जिद के एहतराम के खिलाफ होती है। लेकिन औरत जहाँ एहतिकाफ करती है, वो घर की मस्जिद तो कहलाती है, लेकिन उस पर हकीकी मस्जिद के अहकाम जारी नहीं होते। उस पर हकीकी मस्जिद के अहकाम जो है वो जारी नहीं होते। यही वजह है कि औरत एहतिकाफ की जगह दुनियावी बातचीत भी कर सकती है, घर के काम काज भी कर सकती है, सीने पर होने के काम भी कर सकती है, घर के अफराद को मशवरा भी दे सकती है। मतलब एहतिकाफ की जगह बैठे बैठे ऐसे दुनियावी काम कर सकती है, और उनकी वजह से एहतिकाफ पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि एहतिकाफ के दौरान अपने ज्यादा औकात इबादत में खर्च करें। कोई जरूरत ना हो तो इन दुनियावी कामों से जितना हो सके दूर रहे। तो जो खवातीन सुन्नत एहतिकाफ के लिए नहीं बैठ सकती, तो उन्हें चाहिए कि वो घर की मस्जिद में नफल एहतिकाफ के लिए बैठ जाया करे। इसकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला का कुर्ब और सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ की नीयत से घर की मस्जिद में ठहरने को ये नफली एहतिकाफ कहा जाता है, चाहे जितनी भी देर हो। और मैंने आपको बता दिया कि नफली एहतिकाफ ये अलग से मुस्तकिल इबादत है।
ये क्या है? अलग से मुस्तकिल इबादत है। तो हर औरत को भी चाहिए कि वो घर की मस्जिद में नफली एहतिकाफ की नीयत कर लिया करे। जितनी देर वो वहां ठहरी रहेगी उसको एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। अलबत्ता वहां से निकलने के साथ ही ये एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। और नफली एहतिकाफ के लिए कोई वक्त या मुद्दत मुकर्रर नहीं है। दिन में भी कर सकती है, रात में भी कर सकती है, जब भी चाहे, जितनी देर भी चाहे ये एहतिकाफ किया जा सकता है। और नफली एहतिकाफ के लिए रोजा जो है वो भी जरूरी नहीं है। और इस एहतिकाफ में सुन्नत एहतिकाफ की तरह पाबंदियां जो है वो भी लाजिम नहीं होती। आम दिनों में भी नफली एहतिकाफ कर सकती है, और रमजान में इसका सवाब जो है वो मजीद बढ़ जाता है। तो इस महीने में बतौर खास जो है वो हमें एहतमाम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एहतिकाफ के जो ज़रूरी ज़रूरी मसाइल थे वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। इन बातों पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की अनवारात और बरक़ात नसीब फरमा दे। रमज़ान की अनवारात और बरक़ात से हमें महरूम ना फरमा दे। तो जितने भी ज़रूरी मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने आ गए हैं। तो अगर आपका कोई सवाल वगैरह जहन में रहता है बाकी, वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अमाल मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि ये एहतिकाफ के दौरान हमें कौन से अमाल करने चाहिए, किस तरीके से हमें अय्याम गुजारने चाहिए। मुख्तसरन ये भी मैं जिक्र कर दूं, फिर उसके बाद ये सेशन ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर आपके सवालात और जवाबात का सेशन वो शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेक अमाल जो है वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक गालिबन जब मैं लाहौर में था मस्जिद में, तो मैंने कुछ दस्तूरुल अमल वगैरह बनाए, तो वो मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में। एक तो मगरिब की नमाज के बाद कम अज कम जो है जो नवाफिल नमाज है उनका एहतमाम करना चाहिए। मगरिब की नमाज के बाद कम अज कम 6 रकात नफल, ज्यादा से ज्यादा 20 रकात नफल अवाबीन जो है ये अदा कर लिया करे। इसी तरह आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने बदन पे दम कर लिया करे, और उसके बाद मुख्तसर ताम और मुख्तसर आराम करे, और फिर नमाज इशा की तैयारी कर ले। मर्द हजरात जो है मस्जिद में सफ़ अव्वल में और तकबीर ऊला का एहतमाम कर ले, और खवातीन अपने घरों में इन बातों का एहतमाम कर ले। सफ तो नहीं होती, लेकिन ये कि जैसे ही नमाज का वक्त शुरू हो नमाज पढ़ने का एहतमाम हो जाए। ईशा की नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद बाज़ जगह पे इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की नीयत से प्रोग्राम वगैरह होते हैं मसाजिद में, तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। और अगर इस तरह कोई तरतीब नहीं है तो किसी मुस्तनद और मोतबर दीनी किताब का मुताला कर लें। इसके लिए कुछ किताबों के नाम भी लिख लें। उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसका मुताला बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तबलीग दीन जो है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मौला आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया है, इसका एहतमाम कर लें मुताले का। इस तरह और कोई मुसनद दीनी किताब है उसका आप मुताला कर सकते हैं। जब ये कदर हो तो ऐसी सूरत में कुछ जिक्र और तिलावत वगैरह का एहतमाम करें, नवाफिल जो है उसमें मशगूल हो। और जब सोने को दिल करे तो सुन्नत के मुताबिक जो है वो आप सो जाए। ठीक है। सुबह सादिक होने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले आप बेदार हो जाए, तबई ज़रूरियात से फारिग होके सुन्नत के मुताबिक वजू कर ले, तहियतुल मस्जिद तहियतुल वजू
اور تہجد کی نفلیں جو ہے وہ ادا کر لے۔ تحیت المسجد سے مراد یہ کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت نوافل ادا کرنا وہ مسنون عمل ہے، تحیت المسجد سے کہا جاتا ہے۔ تحیت الوضو جب انسان وضو کرتا ہے تو 2 رکعتیں ادا کرنے کا حکم ہے، اور تہجد کی نفلیں آپ ادا کر لیں۔ اس کے بعد فارغ ہو کے ان کاموں سے کچھ دیر کے لیے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جائے، اور پھر خاموشی سے خوب رو رو کے اپنے تمام مقاصد کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح دارین کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے۔ دعاؤں کا اہتمام یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جمعہ والدین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دعاؤں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے، اس حوالے سے دعاؤں کے حوالے سے تفصیلات ساری آ جائیں گے۔ تو اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح صبح صادق سے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ پہلے سحری کھائیں، سحری سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر کی تیاری کر لی۔ مرد حضرات صف اول اور تکبیر اولیٰ کا بطور خاص اہتمام کریں، جب تک نماز کے انتظار میں رہے استغفار کرتے رہے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیں اور پورے جسم کے دم کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ، درود شریف کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اشراق کے وقت کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات نفل اشراق ادا کر لیں، اور پھر آرام کر لیں، اور چاش کے وقت بیدار ہو کے کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات جو ہے نفل چاش کے طور پہ ادا کریں، اور جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جب بھی موقع ملتا رہے، بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں تلفظ کے ساتھ۔ اس پہ توجہ نہ ہو کہ میں نے زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے ہیں، بلکہ توجہ کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اب ایسی تلاوت کرے گویا کہ اللہ رب العزت آپ کی تلاوت سماعت فرما رہی ہیں، سن رہی ہیں، توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تواضع اور خشوع کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرے۔ جب سوال ہو جائے تو 4 رکعات نفل سنن زوال ادا کرے، اور نماز ظہر کے انتظار میں صف اول میں مرد حضرات بیٹھیں اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور تلاوت کریں، اور پھر اگر کچھ تکھن محسوس ہو تو پھر آرام کر لیں۔ نماز عصر سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائے، وضو کر کے تحیت الوضو اور دیگر نوافل پڑھ کے نماز عصر کا انتظار کر لیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد مختصر تلاوت کریں، پھر وہ تسبیحات ادا کریں جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کر دیا، اور پھر دعاؤں میں مشغول رہے۔ یہ وقت جو ہے یہ بھی بہت قیمتی ہے، اس کو افطار کی تیاری میں ضائع نہ ہونے دیں۔ جو باتیں اعتکاف کی حالت میں مکروہ اور منع ہے ان سے مکمل طور پہ اجتناب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور معتکف کوشش یہ کر لیں کہ جو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو کہ صف اول میں خود آ کے بیٹھے، اور خود کہیں اور ہو تو اپنے لیے چادر یا تولیے سے وہ جگہ روکے رکھے، تو ایسا کرنے سے وہ اجتناب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور کوشش یہ کرنی چاہیے جو مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ افراد آتے ہیں کہ آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، سونے سے، طرز عمل سے کسی دوسرے معتکف کو، نمازی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا بطور خاص اہتمام کرے، اپنی صفائی کا بھی خاص خیال رکھے، مسجد کی صفائی کا بھی اہتمام کر لیں، اور یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یہاں پہ اعتکاف کے لیے جتنے افراد آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ جس طرح اگر آپ کا مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، کوئی دوسرا بندہ جو ہے اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، تو یہ بات پیش نظر ہو کہ اعتکاف میں جتنے افراد آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر کسی کے قول سے، فعل سے، عمل سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو برداشت کر لیں، کیا کر لیں؟ تحمل سے کام لیں،
बर्दाश्त से काम ले। आपने अल्लाह की रजा के लिए अपने घर को, अपने सारे दुनिया के कामों को छोड़ा है, अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में आए हैं। यहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है, इंतजामिया से मुश्किलात पेश आ जाती है, तो घर की सहूलियात यहाँ आपको नहीं मिल सकती। घर की सहूलियात जो है वो आपको मस्जिद में नहीं मिल सकती। तो आप बतौर खास इस बात का एहतमाम करें कि आपने अल्लाह की रजा के लिए दुनिया को छोड़ा है, तो यहाँ पे जैसे तैसे आपने गुजारा करना है, ये 10 दिन गुजारने अल्लाह की रजा के लिए। तो इसकी वजह से आप अपने एहतिकाफ को खराब ना करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, और सुन्नत के मुताबिक हमें ये एहतिकाफ अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन का सही फहम नसीब फरमा दे, कुरान हदीस फ़िक़्ह और उनसे मुतालिका उलूम उनकी ऐसी खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दे जो उम्मत के लिए ज़रूरत हो, उम्मत की ज़रूरत पूरी कर सके और क़यामत तक कायम दायम रहे और हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना, कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान बना दे, इसको क़यामत तक आने वाले हमारे नस्लों में जारी और सारी फरमा दे, और हम सब के तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा दे, हल फरमा दे, हमें रमज़ान के अनवारात और बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमा दे। इसी तरह एहतिकाफ के अनवारात और बरक़ात से भी हमें मुस्तफ़ीद फरमा दे। रमज़ान की बरकत से, इसी तरह एहतिकाफ में जो अफराद बैठ रहे हैं उनके इरादे और नीयत की बरकत से और कुरान मजीद के बरकत से उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमा दीजिए या अल्लाह, उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमा दीजिए। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमा दे या अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा दे या अल्लाह, जो शहीद हो चुके हैं उनकी शहादतों को कबूल फरमा दे या अल्लाह, उनकी शहादतों को कबूल फरमा या अल्लाह, उनकी शहादतों को कबूल फरमा या अल्लाह, जो बाकी है उनकी हिफाजत फरमा या अल्लाह, हमें उनकी मदद करने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा या अल्लाह, ख्वाब गफलत से बेदार होने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह, ख्वाब गफलत से बेदार होने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर उनकी मदद करने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह, हमें बार बार हरमैन शरीफन की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा या अल्लाह, जिनका इंतकाल हो चुका है या अल्लाह, उनकी कामिल मगफिरत फरमा। जो बीमार है तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा या अल्लाह, जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए नेक खानदान के आला और साले रिश्ते नसीब फरमा या अल्लाह, उनके मुस्तकबिल को रोशन बना या अल्लाह, जो भी औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद है या अल्लाह, उनकी औलाद को नेक बना, फर्माबरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बना या अल्लाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए जो खैर मांगा है वो सब हमें नसीब फरमा। जिन चीज़ों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह, उन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह, जो दुआएं हमने मांगी है इन्हें भी कबूल फरमा, जो ना मांग सके हमारी दिलों में है या अल्लाह, उन्हें भी कबूल फरमा या अल्लाह, जब मरने का वक्त करीब हो तो हमें कलिमा तैयबा नसीब फरमा या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें यहाँ जमा फरमाया है या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा दीजिए या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।